وہ آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا کہ ہما بیگم نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ مما۔ وہ ماں کی صورت دیکھ کر گہرا سانس پڑ گیا۔ کیا ماما کا بچہ اتنی سی بات نہیں مان سکتا؟ اگر ماموں کے گھر چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے اور آپ کے ڈیڈ نے جانا تھا، لیکن پر دیکھو نا، آپ کے ڈیڈ کی طبیعت خراب ہے تو ہم شاید ولیمہ ہی اٹینڈ کر پائیں۔ ابھی تمہارے ماموں بالکل اکیلے ہوں گے۔ ان کو اللہ نے بیٹیاں ہی دی ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ایک بیٹے کی ہوتی ہے۔ کیا اپنی ماں کی خاطر ماموں کے گھر نہیں جا سکتے؟ 2 دن بعد ہی تو مہندی ہے۔ ماما اتنی جلدی جا کر کیا کرنا ہے؟ میری بزنس میٹنگز ہیں ان 2 دنوں میں۔ وہ ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھا گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، بیٹا یہی وقت ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ میٹنگز تو ہوتی رہیں گی، یہ دنیاوی چیزیں تو یہی رہ جانی ہے۔ احساس بہت بڑی چیز ہے۔ ہما بیگم بہت رسان سے اسے سمجھا رہی تھی۔ پلیز بھیا چلی نا، میرا بھی بہت دل ہے جانے کا۔ اچانک 16 سالہ رباب کی آمد سونے پر سہاگا ہو گئی۔ اچھا سوچتا ہوں اس بارے میں، ناشتہ تو دے۔ وہ سر نفی میں جھٹکتا ہوا بولا، ہاں میری۔ ہما بیگم اس کا ماتھا چومتے ناشتہ لگوانے لگی۔ ارحم درانی ایک مشہور بزنس نائکون تھا جس کی دھومیں انٹرنیشنل لیول سے بھی بڑھ کر تھی۔ جس پروجیکٹ کو ہاتھ لگاتا وہ ترقی کی منزلیں طے کرنے لگتا۔ باپ کے بزنس کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچانے والا وہ درانی انڈسٹریز کا اکلوتا وارث تھا۔ ساری دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والا اپنی فیملی سے اس قدر محبت کرتا تھا۔ اپنی فیملی میں اس کی جان بستی تھی۔ ماں کے آگے تو وہ بالکل عام سا ارحم بن جاتا، اور ماں کی تو کسی بات کو رد کرتا ہی نہیں تھا۔ اب بھی ان کی ماننی ہی بنی۔ اسے کراچی سے حیدرآباد جانا تھا اپنے ماموں کے گھر، رباب کے ساتھ بھی، اس لیے اس نے بائی روڈ کو ہی ترجیح دی۔ اور اپنی کچھ میٹنگز اس نے جو حیدرآباد کے کلائنٹ سے آن لائن کرنی تھی اب ان سے مل کر کرنے والا تھا۔ رباب بہت خوش تھی۔ پہلی بار وہ خاندان کی کسی شادی میں جا رہی تھی۔ اپنے سب سے اچھے آؤٹ فٹ اس نے ہینڈ کیری میں رکھے، جبکہ ارحم کا بیگ مسز ہما احمد رانی نے تیار کیا تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنی ماں پر ہی ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اس کے تمام سوٹ وہ ٹیک رکھتے تھے۔ وہ اچھا خاصا تھک گئی تھی۔ ہما بیگم نے اپنے بھائی اشرف بیگم کو ارحم کے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ وہ شام میں نکل رہے تھے۔ 2 گھنٹے کا سفر وہ دونوں بہن بھائی بائی روڈ کرنے والے تھے۔ او مولانا جی اندر چلیں، دیکھ بس تیار ہو رہی ہے، پھر بریانی کھا کر ہی جانا۔ یہ ہے بیگ صاحب کی حویلی، جہاں ایک نہیں 3 خاندان بستے تھے، اور ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ اس خاندان کا حصہ تھا، شفیق صاحب۔ وہ لائٹنگ والا کیمرہ رہ گیا ہے۔ یہ تھے ہمارے کلو صاحب، مطلب گلفراز بیگم، ارحم کے سب سے چھوٹے ماموں، جن کی عمر تھی 40 سال، لیکن شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، اور کہانی بھی بڑی دردناک تھی، اور وہ خود ہیبت ناک تھے۔ ارے بولا تھا اس موٹے کو کہ آ جانا وقت پر، شادی والا گھر ہے، 100 کام نکل آتے ہیں۔ ایک طرف بریانی کی خوشبو پھیلی تھی تو پھولوں کی لڑیاں پوری حویلی میں اپنی چھپ دکھا رہی تھی۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک تیز کام ایکسپریس گھومتی ہوئی لال آنچل میں آدھا چہرہ چھپائے مسکراتی سیدھا آگے اشرف بیگ کے سینے سے لگی۔ وہ میرا پتر، یہ تھی ہماری دلہن جی، مشال بیگ، جس نے MS کیا تھا اور باپ کا سر فخر سے بلند کرنے والی وہ مشال بیگ، جس کی چہتی اور من پسند بیٹی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے بابا جان؟ صبح سے انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ جہاں جاتے ہیں وہیں کیوں رہ جاتے ہیں؟ پتہ ہے نا، آپ کو جب تک نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ وہ باپ کے سینے سے لگی دھیمے لہجے میں شکوہ کر رہی تھی۔ ارے میری جان، میری بیٹی کی شادی ہے اور گھر کی پہلی شادی ہے تو کتنے کام ہیں جو کہ جب بھی جاؤ نکل آتے ہیں۔ ایک نپٹانے جاؤ تو اور ایک اور نکل آتا ہے۔ ارے واہ اشرف بھائی، وہ مولوی صاحب کو بول دیا نا کہ وقت پر پہنچ جائے، نکاح نامہ فل کرتے وقت لگ جاتا ہے۔ اچانک اسلم بیگ نے اندر آتے بیٹے کو پکارا۔ جی، یہ ہیں اس حویلی کے سب سے بڑے کرتا دھرتا اسلم بیگ۔ ہر فیصلہ انہی کا ہوتا ہے، اور جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ پتھر پر لکیر بن جاتا ہے۔ ہاں جی ابا جی، سب بندوبست ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ باپ کو سہارا دیتے کھلے آنگن میں ایک چارپائی پر بٹھا گئے۔ دادا آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کا بلڈ پریشر تو نہیں آئی؟ نوری بلڈ پریشر مشین لے کر آؤ۔ وہ وہیں سے ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے بولی۔ ارے پتر، تو عمر کا تقاضا ہے، اب یہ سانسیں بس اکھڑی ہی رہنی ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولے، جبکہ مشال اب ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔
हाई है दादा जान, गोली नहीं ली थी? नूरी के हाथ से गोली लेते दादा जान की जानी बढ़ाई और पानी का गिलास भी उन्हें थमाया। तभी अशरफ बैग के नंबर से उनकी इकलौती बहन उमा की कॉल आने लगी, जिसे सुनने को थोड़ी देर के लिए गार्डन की दूसरी जानिब बढ़ गए थे। फिर सुनते हुए मुस्कुराते खुशी से वापस आए। बस अब्बाजान, उमा बाजी के बच्चे भी पहुंचने वाले हैं। विशाल पुत्र, अपनी अम्मी से बोल के सारे काम करवा ले, ताकि इन बच्चों को परेशानी ना हो। आखिर को कराची शहर से आ रहे हैं यहाँ, और उनके लिए यहाँ रहना आसान थोड़ी ना होगा। उनकी बात पर विशाल ने नाक मुंह चढ़ाई। क्यों बाबा जान, हमारा हैदराबाद कोई चांद है जो उनको मसला होगा यहाँ रहने में? वो बड़ा बुरा मना गई थी। बेटा, आदत नहीं है ना उनको, छोड़ो इन सब बातों को, जल्दी से उनके खाने पीने का इंतजाम करवा दो। हुमा खुद कब आएगी? असलम साहब को बेटी की याद सता रही थी, जो कराची शहर जाकर वहीं की होकर रह गई थी। बहुत कम ही वो मेके आती थी, अगर आती भी तो अपने शौहर के साथ ही आया करती थी। उनके दोनों बच्चे यहाँ की हवेली में ना होने के बराबर ही आए थे, और अब इतने अरसे बाद वो मिसाल की शादी की वजह से आ रहे थे, क्योंकि खानदान की पहली शादी थी। ये हैदराबाद के अंदर नवाही इलाका था, जहाँ बेग हवेली अपने पूरी बुनियादों के साथ खड़ी थी। क्या इन बुनियादों की कोई हिलाने आ रहा था या मजीद मजबूत करने? ये तो वक्त ने तय करना था। वाह भैया, कितनी शानदार हवेली है। गाड़ी जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुई, रुबाब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। पूरी हवेली को जदीद लाइटिंग के साथ सजाया गया था कि देखने वाला दम बखुद रह जाए। और हमको इन सब से फर्क नहीं पड़ता था, वो तो बस माँ की चाहत में यहाँ आया था, और अब इन चंद दिनों को जल्दी से गुजार कर वापस आना चाहता था। अंदर आते वो दोनों बहन भाई सबसे मिले। सभी ने उन्हें खूब प्रोटोकॉल दिया, और बाप तो पहली बार इतना सारा प्यार मिलने पर फूले नहीं समा रही थी। बेटा, आप दोनों के रूम सेट करवा दिए हैं, आप आराम कर लो, फिर मिलकर बैठते हैं। उनकी ममानी नजरत बेगम ने प्यार से अरहम और रुबाब को कहा, तो वो भी उठ गए। रुबाब का तो दिल था कि मजीद बैठे, पर अरहम काफी थक गया था। अच्छा तुम बैठो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। अरहम उसकी आंखों में छुपी तहरीर पड़ता मुस्कुरा कर बोलता उठ गया था। बेटा, यहाँ से लेफ्ट साइड से पहला कमरा है, तुम आराम करो, मैं जरा किचन में देखूं नूरी ने खाना तैयार किया है या नहीं। नजरत ममानी बहुत ही सादा लू खातून थी, बिलनसार और मेहमान नवाज। अरहम को वो काफी अच्छी और सोबर सी लगी। वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर जा रहा था कि अचानक एक खान पान सी लड़की सीधा सीढ़ियां उतरते नीचे आ रही थी। तो इसका दुपट्टा अरहम के चेहरे को ढांप गया। अरहम के कदम वहीं थम गए। विशाल ने अपना आंचल अपनी जानिब खींचा, और इस पल वो बुरी तरह से लड़खड़ाई और सीधा अरहम के ऊपर जा गई। अरहम बामुश्किल उसे संभाले रेलिंग के साथ जा लगा। एक पल को तो जैसे वक्त जुट गया। अरहम रेलिंग पे पीछे की तरफ झुका हुआ था और मिशाल उसके ऊपर गिरी हुई थी। अरहम का एक हाथ उसकी कमर में था, तो दूसरे से वो रेलिंग को उसने थाम रखा था। दोनों की सांसें गहरी हुई। अरहम को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ सुरख आंचल के उस नाजुक सी पतली कमर के जिस पर अरहम की गिरफ्त थी। विशाल ने अपने आंचल उसके चेहरे से सरकाया, तो इस पल दोनों की निगाहें चार हुई। गहरे काजल से भरी सुरमई आंखें अरहम के दिल की दुनिया को ताहवाला कर गई थी, जबकि मिसाल ने पहली बार किसी मर्द की ग्रीन आंखें देखी थी जो बेहद खूबसूरत थी। मिसाल का दिल एक पल को लरसा, और अगली पल वो झटके से उससे दूर हुई कि एकदम फिर से लड़खड़ाई, और इस बार अरहम ने उसे खींच कर अपने सीने से लगाया। आर यू मैड? अभी गिर जाती। वो माथे पर दो बल डाले हुए बोला। तो छोड़े। उसका हाथ बुरी तरह से झटक गई। अरहम को उसका अंदाज काफी नागवार गुजरा। ओहो भाई, कौन हो तुम जो मुंह उठाकर यहाँ तक चला है? विशाल तो बकायदा लड़ने मरने को तैयार हो गई। आप गालिबन मिसाल हैं जिसकी शादी है। अरहम ने अंदाजा लगाया। तो मस्जिद में जाकर ऐलान करवाना है? वो मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी है। वेरी फनी। वो इस बार सर चटक के नीचे उतर गई, जबकि अरहम उसे जाता देखता रहा। अरहम की बेख्तियार ही उसकी नाजुक कमर पर नजर जा ठहरी, तो लबों का एक कोना दांतों में रखते वो आंखें मीच गया। उसके नाजुक कमर का लम्स अभी भी वो अपने हाथों में महसूस कर रहा था। बहुत हॉट है ये लड़की। वो कानों को हाथ लगाता बकायदा सीढ़ियां से ऊपर चढ़ गया था, और लिफ्ट की बजाय राइट वाले कमरे में घुसता सांस पड़ने लगा। ये इतनी खूबसूरत बला मामू ने कहाँ छुपा कर रखी थी, आज तक पता नहीं चला। अरहम दुरानी पहली बार इस तरह किसी लड़की के बारे में सोच रहा था, वरना और वो और लड़की
काफी अलग बात थी। उसने किसी लड़की को आज तक मुंह नहीं लगाया था, पर आज तो मिसाल अशरफ बैग सीधा सीने पर ही आन टकराई। वो आईने में खड़ा होता खुद को देखता मिसाल को याद करने लगा, किस तरह 2 बार उसके सीने से टकराई थी। पागल, क्या सोचने लगा, उसकी शादी है और ऐसे में उसके लिए ऐसे ख्यालात मत पाल। मामू या किसी और को पता चला तो न जाने क्या सोचेंगे। अभी तक सोबर बना हुआ हूँ, फिर गुंडा मवाली बन जाऊंगा। वैसे भी ये लड़की का सीन इंसान को सिर्फ जलील करता है। वो सर झटकता बाथरूम में घुसता शॉवर लेने लगा। शॉवर लेकर निकला तो कुछ हद तक सुकून आया। बाथरब पहने वो अपना हैंड कैरी तलाश कर रहा था, जो इसे नहीं मिला। शायद कबर्ड में लगा दिए होंगे। ये सोचता हुआ वो कबर्ड की जाने पड़ा। कबर्ड खोली तो एकदम सख्ते में आ गया। वहां ढेरों ड्रेसेस थे, लेकिन सब के सब लेडीज। अभी वो कबर्ड बंद करता कि एक शॉपर उसके कदमों में आन गिरा। उसे उठाकर देखा तो कानों से धुआं निकलने लगा। खवातीन की प्राइवेट चीजें। वो अपनी आंखें सख्ती से मीच गया। उफ, ये दिन भी आना था मेरी जिंदगी में। अभी वो यही सब सोच रहा था कि दरवाजा खोलते कोई अंदर दाखिल हुआ और हमने कबर्ड से जरा सा सर बाहर निकाल कर आने वाले को देखना चाहा। वही लड़की मिसाल बैग। ओ, लगता है बस यही मेरी जिंदगी में बार बार आके हलचल मचाएगी। वो, हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी अरहम का चेहरा देख चुकी थी। अरहम ने मुस्कुराते हुए कबर्ड को बंद करना चाहा और उसके हाथ से शॉपर छूटा और उसमें मौजूद चीजें शॉपर से बाहर गिरी। इस पर दोनों का दिल एक पल को थम सा गया। मिसाल की पलकें लड़ने लगी। बेयकीनी से अरहम की जानिब देखा, जो कि बेबसी से कंधे उचका गया। इडियट, रफर। मिसाल ने आगे बढ़कर सारी चीजें जल्दी से शॉपिंग बैग में वापस डाली और कबर्ड खोलते बाहर रखी। निकले मेरे रूम से फौरन। उंगली से उसे बाहर का रास्ता दिखाती गुस्सा जब्त करते हुए बोली, आपका रूम? लेकिन मुझे मम्मा ने कहा था कि इस रूम में। पागल वागल तो नहीं हो गए या पी कर आए हो? आपको अम्मी मेरे रूम में क्यों कहेंगी आने को? और ये प्लीज आगे से ढांपे खुद को। एकदम से बोलते बोलते अपनी नजरों का जाविया फेर गई। लेडीज वार्डरोब में पूरा कैसे आता, जो शायद मिसाल का ही था। सीने के उसके बड़े बड़े मसल्स उभर कर बाहर आ रहे थे और सीने से भी दोनों इतराफ से बाहर को निकला हुआ था। और हम एक नजर अपना बरहाना सीना देखते फिर मिसाल को देखने लगा। कहती हो तो उतार देता हूँ। अचानक वो हाथ डोरी पे रख गया। अरे नहीं, पागल है, प्लीज जाइए, सामने वाले रूम है आपका। उसके आगे हाथ जुड़ गई। ठीक है, ज्यादा माफिया ना मांगो, जाओ माफ किया। वो शानी बेनियाजी से कहता कमरे से बाहर निकला और से बाहर निकलते देखो अंदर आती मंशा तो दंग रह गई। ये अरहम भाई थे ना, जो आज ही कराची से आए हैं? ये तुम्हारे रूम में क्या कर रहे थे? मंशा काफी उलझी तो उसने मिसाल से पूछ लिया। हाँ, वही थे। मिसाल ने कहते गहरा सांस खारिज किया और उसकी जानिब देखा। पर वो यहाँ, यार यार गलती से मेरे रूम में आ गए थे। उन्हें लगा अम्मी ने उन्हें ये कमरा दिया है। विशाल ने सरसरी सा अंदाज में डिटेल दी। ओ, वो तो तुम्हारे बाथरूम में थे ना? मतलब उन्होंने तुम्हारा बाथरूम में शॉवर भी लिया? हमेशा की जसूसी तलब तबीयत वाली मंशा सवाल पर सवाल कर रही थी और चुन चुन कर रही थी। विशाल ने अपना माथा मसला। बता तो रही हूँ कि मैं आई तो शॉवर ले चुका था। अब क्या ये भी बताऊं कि सोप सोप लगाया था या शैम्पू, और कौन सी कंपनी का लगाया था? विशाल तंज करती हुई बाथरूम में घुस गई। क्या पता अपने हाथों से ही नहला दिया हो। मंशा जेरी लब बुड़बुड़ाई। सुनो, यही रुकना, मैं शॉवर लेकर आती हूँ, फिर मार्केट चलेंगे, कुछ चीजें रहती हैं वो लेनी है। विशाल बाथरूम के दरवाजे से यूं ऊंची आवाज में बोलती दरवाजा लॉक कर गई, जबकि मंशा को एक और अजीब लगा। पहले उस शख्स ने शॉवर लिया और अब विशाल ने। सब हो क्या रहा था? विशाल और उस शख्स का कोई चक्कर चल रहा था? नहीं नहीं, नामुमकिन। विशाल की तो शादी हो रही है वहाज खान से, और वो तो बहुत सख्त और गसीला शख्स है। विशाल कभी उसे धोखा नहीं देगी। मंशा ने सर नफी में झटका, पर वो उलझ चुकी थी। कहीं कुछ तो मिसिंग था। वहाज बेटा, खानम भी आपको कमरे में बुला रही है। रशीदा हवेली के पुरानी मुलाजमा ने वहाज को घर से बाहर जाते देखा तो फौरन से बोली। वहाज सर इस बात में हिलाते खानम बी के कमरे के जाने पड़ा। खानम बी उसकी दादी थी और उन्हीं के दम से तो वो जीता था। बेटा आ जाओ, वहां क्यों खड़े हो? खानम बी के प्यार से पुकारने पर वो इनके पास जा बैठा। ये देखो, मैंने बहू के लिए खानदानी जेवर निकाला है कि गंगन तुम्हारी वालदा क्या है, जब तक वो हयात रही उनके पास रहे, फिर जिंदगी ज्यादा वफा न कर सकी। वो अफसुर्दा हुई। खानम भी आप ऐसे अफसुर्दा ना हो,
मेरे दिल पे बोझ सा आ जाता है। वो आज उनके हाथ चूमता मोहब्बत और अकीदत से बोला। वो धीमा सा मुस्कुरा दी। अरे मेरे बच्चे, कुछ दुख जिंदगी भर के होते हैं। हाय ये देख, ये ज्वेलरी सेट, ये सब मैंने तुम्हारी बीवी के लिए संभाल कर रखा था। ये सब अब तुमने उसे देना है। वो नफीफ आवाज में बोलती वहाज के लिए उसका कुल असासा थी। खानम भी प्लीज, इन सब पे पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। ये आप अपने पास रखें, जब जरूरत महसूस हुई मैं खुद आपसे लेकर उसे दे दूंगा। अच्छा आप अभी आराम करें, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। वो रेस्ट वॉच पर वक्त देखता उठते हुए उनका माथा चूमते हुए बोला और बाहर निकल आया। वो एक सख्त गैर और गुस्से वाला शख्स था, जिसका गुस्सा हर जगह मशहूर था। और यही नहीं, वो सरदार वहाज खान था, एक सख्त गैर और असूल पसंद सरदार, जो एक बार फैसला ले लेता तो पीछे नहीं हटता था। आज उसने कुछ लोगों को इस दुनिया में दूसरी दुनिया से बेचना था। बहुत अरसा से वो चार दोस्त मिलकर हर बार लड़कियों को तंग करते, हर बार समझा के वो छोड़ देता, पर लास्ट टाइम तो हद ही हो गई। दो लड़कों को अपने साथ ले गए और अगले ही दिन वो दोनों लड़कियां गांव की कुएं से मिली। दोनों में से एक की डेथ हो गई, जबकि दूसरी मरने से पहले उन चारों के नाम बता गई। अब इन चारों को वहाज खान खुद सजा देने वाला था, जो कि उसके फार्म हाउस के तहखाने में मौजूद थे। मेहंदी की रात आई। मेहंदी की रात देखे कोई प्यारी दुल्हन के हाथ खुशियों भरे अरमानों बड़े। मेहंदी रात तले सपनों को सजाए हुए। अरे आज मेहंदी नहीं, कल है, क्या हो गया है? गुल्लू बैग ने डीजे को टोका। फिर कौन सा म्यूजिक लगाऊं जी? वो लगाओ जिसे सुनकर दिल तड़प जाए और पुरानी मोहब्बतें याद आ जाए। गुल्लू बैग ने ठंडी आह भरी। दो पल यार ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ। अब की बार गुल्लू बैग की आंखें नम हो गई। गुल्लू चाचू, इस रोने से और दुखी गाने सुनने से कुछ नहीं होगा। वो आए हैं, अंदर चलकर बात करें। मेरे साथ साथ आप भी शादी रचा लें। विशाल तैयार होती हुई बाहर निकली तो गुल्लू बैग को देखते हुए सर्द हाँ पड़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, अब तो हो ही नहीं सकता। वो वक्त अब नहीं रहा, खैर छोड़ो। तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो बुटीक है ना, लहंगे में थोड़ा इशू था तो उसे दिया था सेट करवाने को, वही लेने जा रही हूँ। पर बेटा तुम क्यों जा रही हो? मैं ले आता हूँ ना। गोलू बैग ने फौरन से कहा, अरे नहीं, मैं वहां चेक करके लाऊंगी। अरे बस मैं जल्दी लौट आऊंगी। मंशा भी साथ ही जा रही है, फिक्र ना करे। वो इनको तसल्ली देती अपनी गाड़ी की जानी पड़ी। पर ये क्या, गाड़ी तो वहां थी ही नहीं। मेरे अल्लाह, मेरी गाड़ी कहाँ है? उसने आंखें मिलते ही मंशा से पूछा। मुझे क्या पता, अंदर से आई हूँ तुम्हारे पीछे। मंशा ने माथे पर बल डाले। सुबह तक तो यही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या पता तुमसे पहले वो तुम्हारे ससुराल रुखसत होकर चली गई हो। मंशा फजूल बातें मत क्या करो। मेरी गाड़ी कौन लेकर गया है? अचानक ही वो पलटकर चिल्लाई कि मुलाजिम भागता उसकी तरफ आया। बेबी जी, आपकी गाड़ी वो अरहम दुरानी जो कि मेहमान आए हैं यहाँ, वो लेकर गए हैं सुबह। उनकी अपनी गाड़ी में शायद कोई मसला था, तो ये दुरानी उल्लू का पट्टा मेरी गाड़ी क्यों लेकर गया? मेरी ही गाड़ी नजर आई थी क्या इस पूरे घर में? मैंने शॉप से लहंगा उठाना था, अब शादी पे क्या पहनूंगी मैं? वो एकदम से फिर से चिल्लाई थी, लेकिन जैसे ही पलटी अपने बिल्कुल सामने अरहम दुरानी को देखते उसकी जुबान को स्टॉप लगा। वो सीने पर हाथ बांधे गहरी नजरों से उसे ही घूर रहा था। एक पल को मिशाल को थोड़ी शर्मिंदगी से हुई, लेकिन अगले ही पल वो फिर से नजरें उठाकर सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखी जा रही थी। आपको बात करने से पहले सोचना चाहिए कि आप किस अंदाज में किसके बारे में बात कर रही हैं। अरहम दुरानी ने उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए नहायत संजीदगी और सख्त अंदाज में कहा, आपको ही मेरी गाड़ी ले जाने से पहले सोचना चाहिए था। किसकी इजाजत से आपने मेरी गाड़ी लेकर गया? विशाल भी उससे लड़ने मरने को तैयार हो गई थी। मामू जान ने मुझे दी थी ये कीज। और हमने गाड़ी की कीज मिशाल के सामने करते दांत चबाते हुए कहा। विशाल ने कीज को फौरन से उसके हाथ से छीना। वैसे बाय द वे, जिससे आपकी शादी होगी ना, वो वाकई उल्लू का पट्टा ही होगा। जाते जाते उसके अल्फाज वापस उसके मुंह पर मार गया था। विशाल तो सुन ही होकर रह गई थी, जबकि पास खड़ी मंशा का एकदम से कहका छूटा। विशाल ने उसे सख्त गोली से नवाजा तो मंशा ने फौरन अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी को रोक लिया। मार खाने का इरादा है क्या तुम्हारा? चलो जल्दी चलें, अगर देर हो गई ना तो इस शख्स को मैं नहीं छोड़ूंगी। दोनों गाड़ी में बैठी, जबकि मिसाल ने स्ट्रिंग संभालते हुए गाड़ी को रिवर्स किया। वैसे आपस की बात है मिशाल, जवाब उसने बड़े मजे का दिया है। शेर को आखिर सवा शेर ही टकरा गया। मंसा ने एक आईब्रो रेज करते हुए उसे छेड़ा। मुंह बंद करके रखो,
नहीं तो कुछ भी नहीं खिलाऊंगी मैं रास्ते में भूखा ले जाऊंगी और भूखा ही वापस लाऊंगी। वैसे क्या ही होता अगर तुम दोनों की जोड़ी बन जाती, एक आग दूसरा शोला। आह। पंचा ने फिर से उसे तंग किया। तुम चुप करती हो या गाड़ी किसी जगह पर दे मारूं? और ये फजूल बातें ना मेरे साथ मत करना। तुम जाते हो, कल मेहंदी या फिर निकाह है, फिर सब अव्वल फूल बातें हैं, प्लीज मंजा स्टॉप इट। विशाल एकदम सीरियस हुई तो मंजा भी खामोश हो गई। महज को कौन नहीं जानता था, पूरे गांव में वो अंत था। और अगर उसको ये पता चल जाता कि उसकी होने वाली बीवी इस वक्त अपनी कजन के साथ शहर जा रही है तो शायद उसे वहीं दफना आता। पर वो दोनों बहुत राजदारी से निकली थी, दादा जान से इजाजत लेकर, और इजाजत भी उन्हें सिर्फ 2 घंटे के लिए मिली थी। अंदरून नवाही इलाके से शहर का फासला कम ही था, लेकिन फिर भी उन दोनों को किसी ने अकेले जाते नहीं देखा था, वो भी इस सूरत में कि कल मिशाल की शादी के फंक्शन शुरू हो रहे थे। फहाज खान चारों पे हाथ रखे साफ कर चुका था और उन चारों को इबरतनाक मौत देने के बाद वो शहर आया। और उस वक्त उसे मैसेज को देख रहा था जो शहर खींच रहा था। वो एक नाउन अननाउन नंबर था और वो एक होटल में बैठा इंतजार कर रहा था उस शख्स का जिसने उसे मैसेज किया था। और फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, वो सामने से चलते उसकी जानिब आई दिखाई दी। वो दोनों इस वक्त ड्रेस की बहुत बड़ी शॉप पे थी और कुछ देर उन्हें वहां पे बैठना पड़ा था क्योंकि अभी मिशाल का लहंगा आने में थोड़ा वक्त कि तभी मंशा कॉल का बहाना करती उठी। मिशाल मेरी कॉल आ रही है, मैं सुनकर आती हूँ, जल्दी आना। मिशाल ने भी इधर उधर देखते हुए उससे कहा, जबकि वो थोड़ी देर में वापस आ गई। यार मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, यहाँ होटल पर आई है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। क्या कह रही हो, तुम मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़कर जा सकती? मिशाल को उसकी बात पर गुस्सा आने लगा। मिशाल प्लीज थोड़ी देर के लिए, बस 15-20 मिनट की बात है, जितनी देर में तुम्हारा लहंगा आएगा ना उतनी देर में मैं वापस आ जाऊंगी। और प्लीज तुम यहाँ से हिलना मत। मैं बस यूं गई और यूं आई। मंशा ने मिशाल की बात सुने बगैर अपने कहते वहां से फौरन से कदम बाहर निकाल दिए। मिशाल तो देखती ही रह गई। हद हो गई, अचानक उसकी दोस्त यहाँ पर कहाँ से आ गई? वो बुड़बुड़ाते हुए वहां मौजूद बाकी ड्रेसेस को यूं ही सरसरी सा देखने लगी। मंशा जैसे ही होटल पहुंची तो सामने ही वहाज खान मौजूद था। उसे देखते ही मंशा की आंखों में चमक उठी। वो धीरे धीरे चलते उसकी जाने पड़ी तो वहाज ने अपनी नजरें उसके ताकुब में की, पैर से सर तक। उसे देखते वहाज के माथे पर बल पड़े। कैसे हैं आप? मंशा ने उसके पास आते एक चेयर घसीट कर बैठते हुए पूछा। यहाँ बुलाने की खास वजह जान सकता हूँ क्या? वहाज का ना समझते हुए अंदाज का लहजा इंतहाई सर्द था। एक पल को मंशा घबरा कर रह गई। हाँ बिल्कुल, वही तो बताने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस शादी से इनकार कर दें। हिम्मत करते हुए कहा। क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहती हो? वहाज खान के माथे पर अनगिनत बल पड़े। क्यों, आपको शर्म नहीं आती ये सब यहाँ आकर कहते हुए? जाए यहाँ से। वो रुक फिर गया। वहाज खान प्लीज सुन तो ले। देखे मिस, मैं मजाक वाले मूड में नहीं हूँ। मेरा नाम मंशा है। उससे फौरन से उसकी बात काटी। अब जो कोई भी है मेरी बात गौर से सुने। मुझे सिर्फ एक ही जुबान में बात करनी आती है और वो है। वहाज ने अपनी पॉकेट से गन निकालते हुए सामने टेबल पर रखी। मंशा ने गन देखते हुए हलक कर किया। वहाज की जानिब एक निगाह की। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं, बता रहा हूँ कि मेरे साथ कोई भी फजूल हरकत करने की जरूरत नहीं है। जहां से आई हैं वापस वहीं चली जाएं। जा तो मैं रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात को सीरियस लीजिए, क्योंकि मिशाल आपसे प्यार नहीं करती और सामने आपकी खड़ी लड़की आपसे प्यार करती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें उससे शादी करनी चाहिए जो हमसे प्यार करता? क्या बकवास कर रही हैं आप? होश में तो हैं आप? और मुस्तकबिल से क्या ताल्लुक है आपका? आप मिशाल को कैसे जानते हैं? आज एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो मंशा भी घबराते हुए रुक गई और एकदम इर्द गिर्द दिखने लगी कि कोई उनकी जानी मुतवजा ना हो। मैं मिशाल की कजन हूँ और जितना मैं उसे जानती हूँ शायद आप भी नहीं जानते। और इस वक्त भी मैं उसके साथ ही यहाँ शहर आई हूँ। कहाँ है वो? वहाज ने अपनी नजरें इर्द गिर्द दौड़ाई। मंशा को सख्त बुरा लगा। यही करीब है, लेकिन आप आपसे नहीं मिल सकती। बेहतर होगा कि आप मिशाल से निकाह की बजाय मंशा का नाम ले लें। यही यानी कि मेरा। मैं पागल लड़कियों से बात नहीं करता। गेट लॉस्ट। वो गुस्से से कहता हुआ वहां से अपनी गन उठाता चला गया। कहाँ जाऊं मैं, एक की सरफिरा पठान मेरे हाथों में नहीं आने वाला। हाय मनसा, तू कहाँ दिल लगा बैठी है? थोड़ी देर में मनसा वहां विशाल तक पहुंच गई
और दोनों ने ड्रेस लेते वापसी की राह ली। वापसी पर रात गहरी हो गई। दोनों थोड़ा घबरा गई, पर इस बार दोनों खामोश थी। जानती थी कि घर जाकर अच्छी खासी बेइज्जती होगी, पर एक मगमूम उम्मीद भी थी कि दादा जान बचा लेंगे। या इलाही, ये क्या! अचानक ही गाड़ी झटका खाते रुक गई। क्या हुआ? क्या हुआ मिशाल? प्लीज अब कोई बुरी खबर मत सुनाना, मंशा ने घबराते हुए कहा। मालूम नहीं किस मनहूस की शक्ल देखकर निकले थे। मिशाल ने जोर से स्ट्रिंग पर हाथ मारा। वही उल्लू का पट्टा, अरहम दुरानी। मंशा ने लुकमा दिया। फिर तो यही सब होना था ना। अभी वो मजीद कुछ राय अखज करती कि कुछ गाड़ियों ने उनको घेर लिया। या अल्लाह, ये सब कौन है अब? दोनों घबरा गई। तुम दोनों में से वहाज खान की होने वाली बीवी कौन सी है? मुकाबिले ने 1 मिनट में गाड़ी का लॉक तोड़ते बाहर निकालते गन पॉइंट से पूछा। दोनों बुरी तरह से घबरा गई। कौन हो तुम और क्या चाहिए? विशाल ने हिम्मत करते हुए पूछा। तो उस शख्स ने गन का पहला हिस्सा विशाल के सर पर दे मारा। वो बुरी तरह से चकरा कर वहीं गिरी और उसके सर से खून बहने लगा। मंशा ने फौरन उसे संभाला। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, जल्दी से बताओ, वरना एक की बजाय दोनों को ले जाएंगे। उसकी बात सुनते मंशा के रोंगटे खड़े हो गए। यानी ये कोई वहाज के दुश्मन थे जो कि ताक में बैठे थे। मैं हूँ मिशाल, वहाज की होने वाली बीवी, अचानक से मंशा ने बोला। तो मिशाल के चकराते सर के साथ उसे देखती रह गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वो लोग मिशाल को छोड़ते मंशा को अपने साथ ले जाने लगे। मिशाल ने उसे आवाज देनी चाहिए, पर उसकी आवाज उसके हलक में ही दब गई थी। वो बेहोश होती वहीं गिर गई थी। मंशा, उसके लबों से अदा होने वाला वो नाम जो शायद अब कुर्बान होने जा रहा था। मंशा ने नम आंखों से मुस्कुराती निगाह मिशाल पर डाली और उनके घसीटने पर उनकी गाड़ी में बैठी और वो उसे ले गए। और वो इलाका बिल्कुल सुनसान हो गया, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। या अल्लाह, कब की गई हुई है, अभी तक वापस नहीं लौटी, रात होने को है। दादाजान भी अब परेशान थे। फिक्र न करें, मैंने अरहम को फोन किया है, वो बाहर ही है। उसने कहा कि वो जा रहा है उनकी तरफ पता करने। आपको उन्हें भेजना नहीं चाहिए था बाजान। अशरफ बैग का दिल होल रहा था, पर नजरें झुकाए हुए उन्होंने कहा। इसी वक्त असलम बैग की निगाहों में दरवाजे की जानिब उठी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्हें उन दोनों को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। हवेली में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। ऐसे में हवेली के अफराद हद दर्जा परेशान थे। अल्लाह न करे रास्ते में कुछ हो ही ना गया हो। अशरफ बैग अपने आदमियों को भी शहर की जानिब रवाना करो। असलम बैग ने अचानक फैसला लिया। और गाड़ी निकालो, हम खुद भी जाएंगे। अचानक ही वो उठ खड़े हुए। अब थोड़ा इंतजार कर लेते हैं अब्बाजान, और हमसे रास्ते में हैं। वो शहर के रास्ते में ही है। बाकी अपने आदमी को रवाना कर देता, आप यहीं बैठे। वो असलम बैग को वापस बैठा गए। सभी अजहद फिक्रमंद थे, जबकि दूसरी तरफ अरहम मंशा और मिशाल के मोबाइल पर बारी बारी राब्ता कर चुका था, लेकिन दोनों में से कोई कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। इसी वजह से घर में भी वो सभी को फिक्र सताई जा रही थी कि वो फोन भी नहीं उठा रही। अचानक ही अरहम को एक सुनसान जगह पर एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी दिखाई दी। ओह गॉड, ये गाड़ी तो मिशाल की है। वो फौरन ही पहचान गया और स्पीड तेज करते उस तक पहुंचा। अपनी गाड़ी से निकलते हुए मिशाल की गाड़ी चेक करने लगा। मिशाल, मंशा, उन दोनों को पुकारता पागल होने के दर पर था। भला ऐसे कैसे हो सकता है? इन्हें कुछ हो गया हो तो नहीं? वो अपना सर थाम गया। तभी इसकी निगाह दूर सड़क के किनारे मिशाल पर ठहरी, जो बेहोश पड़ी थी। लम्हे के हजारों हिस्से में वो उस तक पहुंचा और उसका सर उठाते अपनी बाहों में रखा। विशाल, विशाल उठो, वेक अप, आंखें खोलो। उसका चेहरा थपथपा रहा था। विशाल प्लीज वेक अप। इर्द गिर्द देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई मदद भी नहीं करने वाला था यहाँ। विशाल, वो मुसलसल उसे पुकारता जा रहा था। ये मिशाल के धीरे से आंखें खुली। धुंधली आंखों से उसने अरहम को देखा। विशाल, यस, ओपन योर आईज। वो इसे हौसला दे रहा था। अरहम, उसने तस्दीक करनी चाहिए। हाँ मैं, उठो जल्दी गाओ। और मंशा, वो कहाँ है? अरहम ने उसे सहारा देते हुए उठाया तो मिशाल को मंशा का जाना याद आया। वो उसे ले गए। मिशाल की आंखों में आंसू बहने लगे। अरहम ने हैरत से उसे देखा। कौन ले गए? वो मुझे नहीं पता। विशाल ने सर पर हाथ रखे दर्द से करलाते हुए कहा। वो उसे अपनी गाड़ी में ले जाते हुए बिठाते खुद ड्राइविंग सीट पे आया। आर यू ओके? अरहम को उसकी फिक्र हुई। एकदम से मिशाल को सब याद आ गया। वो सांस रोके अरहम की जानिब पलटी। वो पूछ रहे थे, वहाज की होने वाली बीवी तुम हो? और इस पर मंशा ने, अरहम ने, उसने मेरी जगह अपनी कुर्बानी दे दी।
उसे वहाज की होने वाली बीवी समझकर ले गए। मिशाल अरहम का बाजू थामते फूट फूट कर रोती। एक पल को तो अरहम को झटका लगा, पर उसे खुद को संभालना था। अच्छा रिलैक्स, रोना तो बंद करो यार, मैं पता करता हूँ, सब ठीक होगा। तुम्हारे पास वहाज का नंबर है? हाँ शायद मोबाइल में। मोबाइल वहां गाड़ी में है। विशाल ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया। अरहम फौरन उस गाड़ी तक जाता, सारा सामान और मिशाल का मोबाइल उठा लाया। वहाज को कॉल मिला। वो गाड़ी स्टार्ट करता संजीदगी से बोला, उस पे तो ढेरों मिस्ड कॉल्स है, बाबा जान और दादा जान की। मिसाल का दिल थमने लगा। इग्नोर करो और जल्दी से वहाज को कॉल मिला। वक्त कम है, वही जानता होगा कि मंशा को कौन लेकर गए। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था। विशाल ने इस बात में सर हिलाते कांपते हाथों से वहाज को कॉल मिलाई, जो दूसरी बेल पर ही उठा ली गई। स्पीकर पर डालो। इस पर अरहम को न जाने क्यों सख्त जेलसी सी फील हुई। यस। विशाल इतनी रात के फोन किया? वहाज की गंभीर और सर्द आवाज सुनाई दी। मैं अरहम दुरानी बात कर रहा हूँ, इस वक्त मिशाल मेरे साथ है। मोबाइल मिशाल से लेते हुए सख्त लहजे में बोलता, एक नजर मिशाल को देखते सामने विंडो स्क्रीन से देखने लगा। आप कौन? वहाज का लहजा बहुत सख्त हुआ और हमने जवाब में उसे सारी बात कह सुनाई। ये आप क्या कह रहे हैं? वहाज अभी अभी घर पहुंचा था, वो गाड़ी से भी नहीं उतरा था कि अरम ने उसे ये खबर सुना दी थी। यही सच है। आपको पता होगा कि आपके दुश्मन किसके साथ है। उसी दुश्मनी में हमारे खानदान की लड़की को किसी किस्म का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। अरहम का सख्त लहजा महसूस करते वहाज एकदम चुप हो गया। डोंट वरी, सुबह होने से पहले मंशा आपके पास होगी हवेली में, तो मेरा वादा है। वहाज अपने कहते कॉल काट चुका था और वो वहीं बैठा दिमाग लड़ाने लगा। मंशा को कौन किडनैप कर सकता है? फिर जल्दी दिमाग ने उस बंदे का साइन दे दिया था। ड्राइवर से कहते वो गाड़ी उस शख्स के एड्रेस पर घुमा चुका था, जबकि उसकी सिक्योरिटी गार्ड भी अलर्ट होते उसके पीछे ही निकले थे। फहाज ने अपनी गन को चेक किया, जो कि फुली लोडेड थी। आज तेरा दुनिया में आखिरी दिन होगा कामरान खान। फहाज दिल ही दिल में अपने सौतेले भाई से मुखातिब हुआ। कहाँ लेकर आए हो मुझे? कौन हो तुम लोग? मंशा ने खुद को छुड़ाना चाहा, पर उन हट्टे कट्टे मशडंडों से ना छुड़ा पाई। फाखिर और आगले मोरे, देख तेरे सौतेले बेटे की होने वाली बीवी आई है। कामरान ने लहक कर अपनी माँ से कहा, तो उसने नफरत से मंशा को देखा। उसकी तो होने वाली थी ना, लेकिन उससे पहले वहाज को पता चले, जल्दी से इससे निकाह कर ले, तभी हमारा बदला पूरा होगा। बदला? कैसा बदला? मंशा ने उस औरत की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। चिल मोरे, इसको भी बताते हैं हम। वो क्या है ना, वहाज ने हमें घर से निकाला। अच्छा, क्या हो गया था? बस एक छोटा सा रेप ही तो किया था। वो साबित नहीं हुआ था और उसने हमको मारा, इतना मारा कि हम हॉस्पिटल पहुंच गया। हमारा मर्दाना ताकत को भी खत्म कर डाला। तब हमने फैसला किया कि जिस दिन वहाज लाला शादी मनाएगा ना, उसकी बीवी को अगवा करके खुद उससे निकाह करेगा और उसे पूरे गांव के सामने जलील करेगा। उसकी बातें सुनते मंशा के कानों से धुआं निकला। मुझसे निकाह करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मंशा ने अपना दिमाग लड़ाते बात को घुमाना चाहा। क्यों, तुम्हारा जनाना ताकत भी खत्म कर दिया क्या वहाज लाला ने? ओ मोरे, ये तो हमारी तरह का ही है। कामरान ने पलटकर माँ को देखते मुंह बनाते हुए कहा। मंशा ने अपना माथा मसला। कैसा कैसा बगैरत और ढीठ बंदा था। ओए बात सुनो, वहाज खान ने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? मंशा ने दांत चबाते हुए कहा। हाँ ना, अब क्या है ना कि तुमने पते का बात किया है, हमने उसने हमको तुमसे निकाह करने के वास्ते छोड़ दिया। चल मोरे, काजी को बुलाओ, हमारा निकाह हो रहा है। वो मंशा को कलाई से थामे हॉल के अंदरूनी हिस्से की जाने पड़ा। छोड़े मुझे, पागल सन की पठान, मुझसे निकाह कर भी लोगे तो भी वहाज का निकाह नहीं रुकेगा। वो फौरन बोली। तो कामरान ठटका। क्या मतलब है तुम्हारा? मंशा तमस्खराना अंदाज में हंसी। मैं वो लड़की हूं ही नहीं जिससे वहाज का निकाह होने वाला है। मैं उसकी कजन हूँ। तुम्हारे झल्ले आदमी बिना तस्दीक किए मुझे उठा कर लिया। छी छी, अफसोस, नकम्मे है सब। मंशा ने अफसोस से सर नफी में हिलाया। दोनों माँ बेटा हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। प्लान चेंज मोरे, अब हम निकाह नहीं करेंगे, ड्रैग सुहाग रात मनाएंगे और इसको दागदार करेंगे। कामरान ने अपनी कमीज के बटन खोले तो वंशा ने घबरा कर इधर उधर देखा। वो अपने दिफा के लिए कुछ न कुछ तो कर ही सकती थी। इससे पहले कि वो भागती, कामरान ने फौरन उसे दबोचा। बाहर से गोलियों की आवाज पर वो चौंकना हुए। लो, आ गया जल्लाद, अब तुम बचना इस पागल सरफिरे पठान से।
कामरान की मोरे सर झटकती वहां से अंदर की जाने बढ़ गई। अरे ओ मोरे, मुझे अकेला छोड़ के जा रही है? चलो कोई बात नहीं, तुम तो हो ना मेरी प्यारी फुलझड़ी। वो मंशा की कमर को सीने से लगाता उसके गले में बाजू लपेट गया, और इससे पहले कि मंशा खुद को छुड़ाती अंदर आते, फहाज खान को देखते हुए वहीं थम गई। प्लीज अरहम, घर नहीं जाना, मंशा के बिना नहीं जा सकती। मैं मैं कैसे क्या जवाब दूंगी चची जान को, बाबा को, चचा जान को, दादा जान को? मैं नहीं कर सकती सबका सामना। काश काश मैं ना जाती तो ये सब ना होता। वो बुरी तरह फूट फूट कर रोती। वो अपने इलाके की हदूद में दाखिल हो चुके थे और अशरफ बैग के आदमियों ने उन्हें अपने हिसार में ले लिया था ताकि वो बाहिफाजत घर पहुंच सके। अल्लाह पे भरोसा रखो, मंशा आ जाएगी घर वापस। और हमने धीरे से कहा। सबके मिसाल का रोना अब भी बंद नहीं हो रहा था। गाड़ी हवेली में इंटर हुई तो सभी उनके जाने पड़े और हम विशाल को लिए गाड़ी से नीचे उतरता हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? नजरत बेगम ने उसे सीने से लगाया। वो फूट फूट कर रो दी। मंशा, मंशा कहाँ है? सबकी सवालिया नजरें अरहम पर थी और हमने एक निगाह रोती हुई मिशाल पर डाली और फिर वहां मौजूद घर के अफराद को मंशा की किडनैपिंग का बता दिया। हाय मेरी बच्ची। चाची वहीं बेहोश होकर गिर गई। सब उन्हें संभालने लगे। और हम कौन लोग थे? वो कुछ तो पता चला होगा। वहाज को फोन करो। अशरफ बैग पागल होने के दर पर थे। सरमद बेग, मंशा के वालिद, वो भी एक कुर्सी पर ढेर से गए थे। बेटी का किडनैप होना मतलब बेटी बदनाम हो गई। उन्हें अपनी बेटी की जान की फिक्र खाई जा रही थी। आप हौसला रखें, वहाज से बात हो गई मेरी। पता क्या है कि वो मंशा को लेकर आएगा। और हम सबको हौसला और दिलासा दे रहा था। सब उसकी वजह से हुआ है। ये लेके गई है मेरी बेटी को, खुद तो वापस आ गई, मेरी बच्ची को छोड़ आई। चच्ची अब उस वक्त मिशाल को कोसते ना जा रही थी। वो भी चुपचाप अब सब सहती जा रही थी। वो खुद भी इस वक्त मंशा के लिए परेशान थी और खुद को इस सबका जिम्मेदार समझ रही थी। एक तरफ बैग हवेली का हर फर्द ही बेबस और दुख में डूबा हुआ था, तो दूसरी तरफ वहाज अपने ही सौतेले भाई पर गन ताने खड़ा था। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो लड़की को छोड़ दो। वहाज की सर्द आवाज पर कामरान कहका लगाने लगा। ऐसे कैसे छोड़ दो लाला? पहले बदला तो ले लो। तुमने मुझे नामर्द बनाया, मैं अब इस लड़की के साथ सुहागरात मनाकर इसको दागदार करके साबित करूंगा कि मैं नामर्द नहीं हूँ। वो आखिर में चिल्लाया। मंशा का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। अगर इस लड़की को खरोच भी आई ना तो इस बार तुम्हें नहीं मैं बख्शूंगा कामरान खान। वहाज दहाड़ा तो कामरान भी एक पल को लर्ज कर रह गया। दूर रहो लाला, वरना ये लड़की जान से जाएगा। अगले लम्हे कामरान ने वहाज के पास आते वहाज का निशाना लिया। मंशा का दिल भी रुक सा गया था। वो चीख मारती वहाज को देखने लगी। आपको क्या जरूरत थी यहाँ आने की? मिशाल नहीं, किडनैप हुई जो मुंह उठाए चले आए हैं। आपका निकाह है, कल वापस जाए वरना मसला हो जाएगा। मंशा ने मुंह बिगाड़ कर कहा। वो उटपटांग बातें कर रही थी, पर दिल ही दिल में वो वहाज को लेकर डरी हुई थी कि कहीं कामरान खान वहाज को गोली ही ना मार दे। छोड़ लड़की, वो आखिरी बार कह रहा हूँ। वहाज ने मिशाल की बात को सिरे से ही नजरअंदाज कर दिया। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे कामरान से शादी करनी है, आप चले जाए यहाँ से। अब की बार वो ज्यादा ही बोल गई थी। हमारी शादी तो मैं करवा दूँ। वहाज ने गन के रुख कामरान की जानिब करते एक फायर दाग दिया था। वो तड़प कर रह गया। मंशा से गिरफ्त ढीली हुई तो कानों पर हाथ रखे वहाज की जानिब आ गई। कामरान भी संभलता जवाबी कार्रवाई कर रहा था और उसके मोरे ने उसके हाथ से ऊपर कर दिया था। बस बहुत हो गया, मत ले इससे पंगा। सर फिरा है वो, बोला भी था। ये वहाज खान, तू जा, ले जा इस लड़की को, हमें बख्श दे। बल्कीस खान ने हाथ जोड़ दिया जबकि मंशा ने अफसोस से माँ बेटे को देखा। कितनी बड़ी चालबाज औरत है ये। पहले बेटे को बरगला रही थी और अब उल्टा बेटे को ही सुना रही है। शायद दिमागी कमजोरी है ऐसे। मंशा वहाज के साथ चिपकी अपनी राय उसे सुना रही थी। तुम्हारी बहादुरी, यहाँ निकलने के बाद मैं चेक करता हूँ, उसे जवाबन कहता अपनी सौतेली माँ के जाने मुड़ा। ये आखिरी बार था। आइंदा अगर इसने मेरी जात से जुड़े किसी भी रिश्ते को तकलीफ दी ना तो बिना वार्निंग के सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा। वार्निंग सख्त अंदाज में देता हुआ वहाज उसे धमकी देता मंशा को कलाई से थामे बाहर ले आया, जहां हर तरफ उसके आदमी फैले हुए थे। उसे गाड़ी में बिठाते उसका रुख बैग हवेली की जानिब था। उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। नाराज है मुझसे? मंशा ने धीरे से वहाज से पूछा जो मुसलसल ड्राइविंग कर रहा था। झूठ क्यों बोला?
کیا آپ وہاج خان کی ہونے والی بیوی ہیں؟ وہ سخت لہجے میں پوچھتا منشا کو سہما گیا۔ منشا نے لب بھیجتے ونڈو سے باہر دیکھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں منشا، سرمت بیگ۔ وہ اس بار اس کا پورا نام لیتے اس کا دل دھڑکا گیا۔ تو کیا کرتی؟ کزن ہے میری، بہنوں سے بڑھ کر، کیسے جانے دیتی اسے؟ اور پھر آپ کا نکاح بھی تو ہونے والا ہے نا اس سے۔ اگر وہ کڈنیپ ہو جاتی تو لوگوں نے وہاج خان کو کیا کچھ کہنا تھا؟ وہاج خان کی عزت پر لوگ انگلیاں اٹھاتے، کیسے برداشت کرتے آپ؟ اسی لیے میں نے وہ سر جھکائے نم لہجے میں بولتی بات مکمل نہ کر پائی، اس لیے آپ نے اپنا پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہاج کا غصے سے برا حال تھا۔ منشا اس کا غصے سے سہم گئی تھی۔ مجھے جو صحیح لگا کر دیا، پلیز آپ غصہ نہ کریں۔ وہ اپنا چہرہ چھپا گئی کہ کہیں اسے غصے سے تھپڑ ہی نہ جڑتے۔ ڈینمٹ، وہ اسٹرنگ پر مکہ جھڑ چکا تھا۔ منشا مزید دبک کر گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا چکی۔ وہاج نے غصہ ضبط کرتے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ جانتی ہیں اس سب کے ساتھ بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی آپ سے شادی کرے گا؟ کڈنیپ ہوئی لڑکی معاشرے کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ جانتی ہوں، اسی لیے آپ کو آپ کی عزت کو بچا لیا۔ میری خیر ہے، کسی کے ساتھ نسبت نہیں جڑی تو ٹوٹ جائے گی۔ کچھ عرصہ لوگ باتیں بنائیں گے، پھر بھول جائیں گے، اور پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ نہیں کرے گا کوئی شادی تو نہ کرے۔ اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہی ہوگی کہ اپنی چاہت کے نام ساری زندگی گزار دے۔ منشا کی بات سنتے وہاج کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ لڑکی اس سے اتنا دیوانہ وار محبت کرتی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ منشا کو لیے بیگ حویلی میں داخل ہوا۔ سبھی جیسے اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ منشا کو صحیح سلامت دیکھتے سب کی جان میں جان آئی۔ مشال نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ ظالم لڑکی، مجھے مار ہی ڈالا تھا تم نے۔ مشال نے اس کا ماتھا چومتے پیار کرتے ہوئے کہا۔ اندر خواتین منشا اور مشال کو دیکھ کر اور سن رہی تھی تو مردان خانے سے وہاج بیٹھا سب کو ساری باتیں بتا رہا تھا۔ منشا اغوا ہوئی، یہ بات تو پورے علاقے میں پھیل جائے گی، میری بچی کی تو زندگی برباد ہو گئی نا۔ سرمت بیگ کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ دادا جان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ چاہیں تو میں منشا سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اچانک وہاج نے فیصلہ کیا۔ سب ساکت اسے دیکھتے چلے گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم وہاج؟ تمہارا نکاح مشال سے؟ انکل پلیز، ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا۔ وہاج نے اشرف بیگ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے معذرت کی۔ مشال کو تو کوئی بھی اچھا لڑکا مل جائے گا، پر جو قربانی منشا نے مشال کے لیے دی ہے وہ نہ کی جا سکتی۔ میں گواہ ہوں منشا کی پاک دامنی کا، اس لیے میں خود اسے اپنانا چاہتا ہوں، کی اجازت سے۔ وہ دادا جان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تو اسلم بیگ نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا۔ گلو صاحب بھی وہیں موجود تھے اور ارحم بھی، وہ بھی اس بیٹھک کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو میں ایک فیصلہ اور لینا چاہوں گا۔ آج منشا کا نکاح واحد سے ہوگا تو میری مشال کا نکاح بھی ساتھ ہی ہوگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جان؟ ایک ساتھ دونوں کا نکاح واحد سے؟ اشرف بیگ کی بات پر اسلم بیگ نے اپنے بیٹے کی سوچ کو 100 توپوں کی سلامی دی۔ ارے یار، ہوش کر، ایک ہی بندے سے کیوں دونوں پوتیوں کو بیاہوں گا میں، جب ایک بندہ اور موجود ہے؟ اسلم بیگ کی بات پر سب نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھا، جو کہ جن کی نظروں کے بالکل سامنے ارحم دورانی کے سینے پر ہاتھ باندھے وہ کھڑا تھا۔ ارحم دورانی ان کی بات کا مطلب سمجھتے ایک دم سیدھا ہوا۔ یہاں ہو ارحم، میرے پاس۔ انہوں نے نواسے کو بلایا۔ وہ سب کی خاموش نظروں کو خود پر محسوس کرتا، ایک نگاہ سب پر ڈالتا اسلم بیگ کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات کا مان رکھو گے اور میری پوتی سے نکاح کرو گے۔ میرے لیے تم اس قابل ہو کہ میں تم پر بھروسہ کر سکوں، اپنی پوتی تمہیں سونپ سکوں۔ ان کی باتوں پر سبھی دم سادے ارحم کا جواب سننے کو منتظر تھے، چونکہ بالکل خاموشی ہو گیا تھا۔ نانا جان، آپ ایک بار ماما سے بات کر لیں، میں نے کبھی کوئی کام ان کی اجازت کے بنا نہیں کیا ہے۔ وہ اس قدر فرما بردار ہوگا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسلم بیگ نے اس کا ماتھا چوما تو ارحم انہیں حیرانی سے دیکھے چلا گیا۔ اتنی محبت کہ وہ نظر انداز کیے شہر میں اپنے بزنس کو آسمان کی بلندی میں پہچانے پر لگا تھا۔ کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا؟ ہما کی فکر نہ کرو تم، وہ میری بیٹی ہے، مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ اشرف بیگ، چل میرے بچے، نیک کام میں دیری کیسی؟ بلا مولوی صاحب کو، نکاح تو آج ہی ہوگا، ابھی ہوگا، اور رخصتی کل دھوم دھام سے کریں گے۔ ان کی بات سنتے سبھی کے چہرے پر مطمئن اور آسودہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں خاتون خانہ میں یہ بات بھی پہنچ گئی کہ 2 نکاح ہو رہے ہیں۔
मंशा का वहाज से और विशाल का अरहम से। मंशा, अरहम और विशाल के निकाह पे खूब हंसी, पर जब अपने निकाह का सुना तो हंसी को ब्रेक लगा। मेरा निकाह? अचानक क्यों? वो उलझी और बोलना भी चाह रही थी कि उसकी वालदा ने उसे रोक दिया। पूरे 4 घंटे हवेली से बाहर थी, गुंडे मवाली के साथ। कौन करेगा शादी तुझसे? अगर वहाज ने हामी बड़ी है तो हमें उसका शुक्र गुजार होना चाहिए। वो मुंह बसोर गई। वो वहाज को दिल और जान से चाहती थी। वो उसका पहली नजर का प्यार था, पर किस्मत उसकी मिसाल के साथ रब ने जोड़ दी। उसने एक कोशिश की कि वहाज मिसाल के बजाय उसका इंतखाब करे, पर इस तरह से निकाह होगा उसने तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर कुछ ही देर में दोनों का निकाह हो गया। हुमा और उनके शौहर ने ये निकाह ऑनलाइन अटेंड किया। वो तो बाप के हम ख्याल ही थे। उन्हें तो शुरू से दिल था कि भाई के घर से भतीजी को लेकर आए, पर बेटे का नखरा 7वें आसमान पर बैठा था कि किसी लड़की का जिक्र तक न करता था। और फिर अल्लाह ने उनकी सुन ली तो वो कैसे इनकार कर दी। वो सुबह सुबह ही निकलने का कहते कॉल बंद कर चुके थे। अलबत्ता बहू और बेटे को मुबारकबाद देना ना भूले थे। आज खान, कल धूमधाम से बारात लेकर आना और अपनी अमानत को रुखसत करके ले जाना। असलम बैग की बात पर वहाज ने इस बात में सर लाया। वापसी के रास्ते में वो बस एक ही बात सोच रहा था कि उसने ये सही फैसला किया या फिर गलत। पर उसका दिल उसे कह रहा था कि उसका फैसला दुरुस्त है। जिस लड़की ने अपनी बहन जैसी कजन को बचाने के लिए खुद पर दाव पर लगा दिया, चाहती तो खुद को बचा सकती थी। विशाल को अगवा किया जा सकता था और फिर मामला भी और हो जाता, पर उसका इरादा, उसकी नीयत दोनों साफ थे। अल्लाह ने उसको उसकी मोहब्बत दे दी थी, और सिर्फ यही नहीं, वहाज के दिल में भी अल्लाह ने उसके लिए नरम गोशा पैदा कर दिया था। तेरे घर आया मैं तुझे लेने। दूसरे दिन बारात का दिन था और गुल्लू साहब ने बहुत खुशी की। उनकी बरसों पुरानी मोहब्बत भी उनको इतना खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। वो कोई और नहीं, सुहानी थी, जिनकी शादी 7 साल पहले हो गई थी और अब एक बेटा भी दिया था अल्लाह ने। पर 4 साल पहले वो बेवा हो गई थी और बेटा 5 साल का था। गुल्लू साहब तो अब भी उसके दीवाने थे, क्योंकि शादी जो ना की थी। क्या बात है माँ, कोई मोहब्बत का चक्कर तो नहीं? अरहम ने गुल्लू और सामने मौजूद उस औरत को देखा तो पूछने बिना ना रह सका। गुल्लू ने फौरन से नजरें फेर ली। इस उम्र में आकर मोहब्बत करूंगा भांजे, क्या हो गया है? वो टोक गए, पर बात पहुंचते पहुंचते असलम बैग तक पहुंच गई। उन्होंने बहुत संजीदगी से इस पहलू को देखा। सुहानी उनकी मरहुमा बहन की बेटी थी, बेवा थी, बच्चा भी था। उन्होंने गुल्लू को बुलवाकर उससे राय ली कि वो माँ और बेटा दोनों को सच्चे दिल से अपनाना चाहता है तो बताए, अभी उसका निकाह भी कर देते हैं। गुल्लू की आंखें नम हो गई। इतने अरसे बाद उसके बाप को उसकी मोहब्बत की समझ आ रही थी। सुहानी और गुल्लू का निकाह होते ही सबने बेइंतहा खुशी की। सुहानी शर्मा रही थी, जबकि उसका 5 साल का बेटा माँ को दुल्हन बने देख सबसे ज्यादा खुश था। मामा, आपने मुझे अपनी शादी में बुलाया, मैं भी आपको अपनी शादी में बुलाऊंगा। छोटे शहर की बातें सुनते सब खिलखिला उठे। बल आखिर गुल्लू जी की भी सुन ली गई थी। मौत से शायद ऐसे ही होते हैं, और मोहब्बत सच्ची हो तो मिल ही जाती है ना। एक के बाद एक बारात हवेली में दाखिल हुई। हुमा बेगम बेटे के हमरा दाखिल हुई थी। उनके तो आज ईद का दिन था। बहुत धूमधाम से मिशाल को अपनी बहू के रूप में ब्याह कर वो ले जा रही थी। तो वहीं पठानों की तरफ से भी बारात हवेली पहुंची और वहाज खान अपनी दुल्हन को लेने आया। वहाज खान असलम बैग की बहुत इज्जत करता था और उनके एहतराम में उनका हर हुक्म मान रहा था। असलम बैग ने रब के हुजूर शुक्र अदा किया कि उन्हें अपनी दोनों पोतियों के बहुत अच्छे दामाद मिले। दोनों पोतियों के दुआओं के साए में रुखसत किया गया और हम बीमा अपनी फैमिली के मिशाल को रुखसत करवा कर ले जा रहा था। असवद दुरानी बीवी और बेटी के हमरा अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर उन्हें कराची की तरफ गामजन हुए थे, जबकि अरहम और मिशाल को प्राइवेसी देते उनको अरहम की गाड़ी में ही अलग से कराची रवाना किया गया था। वो दुल्हन बनी घूंघट निकाले पैसेंजर सीट पर बैठी गर्दन मोड़ के अरहम को देखने लगी, जो कि इंतहाई संजीदा था। विशाल ने धीरे से घूंघट उलट दिया। अरहम की बेख्तियार निगाह उस पर जा ठहरी। उसका मनमोहना चेहरा देखते अरहम का दिल एकदम से गुदगुदाया। एक गहरा सांस भरते वापस विंडो स्क्रीन के पार देखने लगा। विशाल, घूंघट ओढ़ो। लहजा इंतहाई गंभीर था। मेरा दम घुट रहा इतने बड़े आंचल से। वो मुंह बनाते हुए बोली, विशाल। उसे तनबिया निगाह से देखने लगा। प्लीज अरहम, आप तो शहर में रहते हैं, ये पर्दा क्यों करवा रहे हैं? वो चिड़ी, इतनी तैयारी देखो मिसेस, मैं नहीं चाहता कि कोई इस रूप में तुम्हें देखे। वो साफ कोई से बोला,
تو مشال کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں، کسی نے کہا تھا کہ میری جس سے شادی ہوگی نا وہ الو کا پٹھا ہوگا۔ اتنا کہتے وہ ارحم کے غسیلے چہرے کو دیکھتی کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ اس کی ہنسی کے جنکار کو ارحم نے آگے بڑھتے اپنے لبوں سے چنا تھا۔ وہاج کی سیج سجائے بیٹھی وہ اچانک ہی دلہن بنی اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ خانم بی کو وہاج نے کامران اور اس کی ماں کی ساری سازش کا بتا دیا۔ انہوں نے بھی منشا کو دل و جان سے اپنا لیا تھا۔ منشا نے اس دن اپنا سب کچھ بولا وہاج کو کہ اس گھر کو اس کو سیج سجا کر بیٹھی وہ گھبرا رہی تھی، ہتھیلیاں پسینوں سے بھر گئی تھی۔ وہاج خان اندر داخل ہوا تو منشا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ اس قدر ڈری ہوئی کیوں ہو؟ آپ نے کیوں مجھ سے شادی کی؟ کیوں کھایا مجھ پر ترس؟ وہ ایک دم بچھڑی تھی، ہوش میں تو کس طرح کی بےہودہ گفتگو کر رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، سب نے کہا کہ میں 4 گھنٹے غائب رہی، کوئی مجھ جیسی لڑکی سے شادی؟ شش! اس کے ہونٹوں پر نرمی سے انگلی جما گیا تھا۔ خبردار جو کچھ بھی غلط منہ سے نکالے، ورنہ ان ہونٹوں کو سخت سزا دوں گا میں۔ وہ اس کے بے حد قریب ہوتا اپنی پرتپیش سانسیں اس پر چھوڑتا اس کو سہما گیا تھا۔ پھر اور کیا وجہ تھی؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھری پوچھتی وہاج کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہی بتانے کے لیے تو یہاں لایا ہوں۔ اچانک وہاج کا لہجہ اور انداز بدلا۔ خامدار آنچل کو اس کے تن سے الگ کرتے وہ دھیرے سے ایک طرف رکھتا اس کی جانب پیش قدمی کرتا، اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ آپ اتنے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ پیچھے ہوتے ہی بیڈ پر جا گری۔ نرم گلاب کی پتیاں اس کے ہاتھوں کے نیچے دب سی گئی تھی، جبکہ وہاج اس پر سائے فگن ہوتا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو تھامے ذرا سا اپنی طرف کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ بہت پیاری ہے، نرم ملائم سی، دل میں گدگدی سی ہو رہی ہے۔ وہ ایک آنکھ بند کرتا اس کے اپنے اوپر کرتا، خود تکیے پر گرا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس کا ماتھا چیک کرتی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، جو آنکھیں بچے اس کی حسن کی نازکی کو خود پہ محسوس کرتا، اپنے جوان جذبات میں آگ دہکتی محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ سے بٹن دباتے، کمرے کی لائٹس بھی بند کرتے، سائڈ لیمپ کو آن کیا تھا تو منشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے تکیے پر گرا تھا، اس کے ماتھے پر لب رکھتا، اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس نرم گرم لمس پہ منشا نے جھٹ سے آنکھیں بند میچ لی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اسے اپنی شدت نچھاور کرتا، ایک دم بہکتا جنونی ہوا۔ وہاج وہ گھبرا گئی۔ وہ ایسے مصروف تھا جیسے آج اس خوبصورت لڑکی کو تذکیر کر کے ہی دم لے گا۔ اگلے ہی پل وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ رہی۔ وہاج نے اسے پھولوں کی طرح سمیٹا اور اس کی محبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ بہت زیادہ تھکے ہوں گے نا میرے بچے، ریسٹ کرو۔ ہما بیگم نے سب کے کھانے پینے کا بندوبست کروایا تھا، جس میں کافی وقت بیت گیا۔ انہوں نے مشال کی حالت دیکھتے اس کا ڈریس بھی چینج کروا دیا تھا۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے مشال کو بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ گئی تھی۔ ارحم جب کمرے میں آیا تو اپنی دلہن کے بکھرے سراپے کو دیکھ کہیں ٹھک ٹھک کر رک گیا۔ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی اور سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹ کو اس نے پیچھے کیا تو وہ ذرا سا کسمسائی۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ارحم کا دل اٹک جا رہا تھا، پر اس کی نیند خراب کرنے کا دل نہ کیا۔ وہ دھیرے سے اس کی جانب سرکا اور اس کا سر تکیے پر رکھتا پیچھے ہٹنے لگا کہ مشال کی آنکھ کھل گئی۔ آپ! وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ سو جاؤ۔ وہ اسے واپس لاتا مسکرایا۔ اتنی عنایت، وہ بھی ارحم دورانی، واہ! وہ مسکرائی۔ میں بہت رحم دل انسان ہوں، ابھی تو مجھے جانتی ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس سے بیک گراؤنڈ سے ٹھیک لگاتا بیٹھتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ رحم دلی آج سہاگراتی دکھانا، خود کے ساتھ ناانصافی نہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہے تو صحیح، پر آپ سو رہی تھی وائف صاحبہ، تو سوئی ہوئی بندی کو جگانے کا دل نہیں کیا۔ سوئی ہوئی اگر آپ کی دلہن ہو تو جگانا بنتا ہے۔ وہ اس کے بازو کو وا کرتے اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پیار سے بولی، اب ایسے کرو گی تو خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پاؤں گا۔ اسے وارن کر رہا تھا تو کس نے کہا کہ کنٹرول کریں؟ مشال نے ایک آنکھ بند کرتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کے لبوں کو گرفت میں لیا، جبکہ سنہرے آنچل نے ان دونوں کو ہی اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔